Don't get enough sleep, don't have enough energy, don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity potties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I worked my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. You stop the lies with the truth. And the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill that's worthwhile. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you gotta go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you wanted to have it, get your butt up and make it happen. If you wanted to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. हाय टीम, गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग। और उम्मीद है कि आप सब सेफ हैं और आप सभी को शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। और आप जैसे कि जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है शुरुआत मोदी घर का एक बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेनिंग के बारे में आज हम देखेंगे, जानेंगे और अंत में हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। जी तो शुरुआत जिनका पिक्चर है वो हमारे ग्रेट मेंटर्स, नेशनल बिल्डर्स मिस्टर समीर मोदी जी है। और उनका जो कहना है, शुरुआत अगर आप कुछ भी काम करते हैं until unless अगर आप स्टार्ट नहीं करते हैं तो उसको शुरुआत आप कभी नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आता है। और मोदी केयर में आपको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन प्लान बताया गया है कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरुआत कैसे करें। और उसके लिए हम देखते हैं 10 कदम आजादी के। तो ये 10 कदम क्या चीज है जिसको हम शुरुआत करेंगे तो हम मोदी केयर पे सक्सेस होते हैं, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो उसमें से 10 कदम जो आजादी है, सबसे पहला आता है आपका सपोर्ट चार्ट है यहाँ पे कंपनीज का, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर 2 नंबर में है आपका गोल सेटिंग्स, और 3rd नंबर में प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, 4th में है सेल्फ
यूज, और 5th में है आपका शेयर, और 6th में है स्पॉन्सर, 7 में है आपका स्ट्रक्चर, 8 में है रोल मॉडल, 9 में है पर्सनल प्रोग्रेस, और 10 में है डुप्लीकेशंस। तो ये 10 जो आजादी का स्टेप्स है उसके बारे में हम एक एक करके जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1, सपोर्ट चार्ट। तो वो क्या चीज होता है, और जैसे कि आप कंपनी में जुड़ जाते हैं, सबसे पहला आपको स्पॉन्सरिंग किसने किया है, आपको ज्वाइनिंग किसने दिया है, आपका अप्लायंस कौन है, उनका नंबर आपके पास रहना चाहिए। और सेकंड में देखना चाहिए कि आपके अप्लायंस के अपलाइन, आपके टीम में डायरेक्टर्स कौन है, आपके टीम में जो अप्लायंस है उसके नंबर आपके पास रहना चाहिए। और फिर चलिए आप फिर सीनियर डायरेक्टर का नंबर आपके पास रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपके कंपनीज में सीनियर डायरेक्टर कौन है, और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आपका कंपनीज का, और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और टिल आपको जीबीडी तक जाना पड़ेगा। आपका कंपनी का जीबीडी कौन है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड कौन है, कंपनी का जो अंतिम जो हमारा पोजीशन है वो कौन है, आपको ये बात पता रहना चाहिए। तो ये सब का नाम और नंबर आपके मोबाइल पे रहना चाहिए, और आप इसको कभी भी फोन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, आप कभी भी फोन करके किसी भी तरीका का सपोर्ट ले सकते हैं। क्वेरीज का जो भी आपका क्वेश्चन रहते हैं आप उसको क्लियरिफिकेशन करा सकते हैं, या न्यू ज्वाइनी है उसको प्लान शो करना है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आई एम श्योर तो सेकंड नंबर और एक आपको सपोर्ट है, वो कंपनी चार्ट के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजादी कॉल सेंटर्स है हमारा, और इसका जो टाइमिंग है सुबह का 10 बजे से लेकर शाम का रात का 10 बजे तक है। और ये फोन नंबर्स प्लीज अपने मोबाइल पे आप सेव कर लीजिएगा। टोल फ्री नंबर है 180030012999। ये नंबर को आप सेव करके रखिएगा। आप कभी भी किसी भी प्रकार का आपको अगर दिक्कत होता है, जैसे कि आपको कोरियर के अपने कोरियर टाइम पे नहीं पहुंचा है, या फिर आपका KYC का प्रॉब्लम, NEFT का प्रॉब्लम, या फिर आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ये सब चीजों को आप लेके फोन कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपका MCA नंबर आपका रहना है। अगर आप अपने के लिए सब कुछ करेक्ट है तो नो प्रॉब्लम, आप अपने डाउनलाइंस के लिए आप इसको हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपका मोबाइल में एप्स काम नहीं कर रहा है, अगर किसी प्रकार का अगर आपको जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको बिजनेस, आपका PV क्या होता है, BB क्या होता है, बोनस कितना आ रहा है, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन कौन सा महीना में हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली आज ही का दिन में हमारा मिस्टर प्रेम प्रसाद गिरी जी को आज एनुअल लॉयल्टी मिला है, जिसका अमाउंट है 11,000 रुपया। तो आपको साल में इतना फ्री प्रोडक्ट आपको कैसे 11,000 का अमाउंट मिला, उसके बारे में कैलकुलेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद आपका पासवर्ड का प्रॉब्लम है मोदी केयर के ऐप्स को लॉग इन करने के लिए, तो फिर आप इन नंबर को मिस कॉल कर सकते हैं, आपको वो लोग फोन करेंगे या मैसेज करेंगे। अगर आपको उसमें कुछ परेशानी है तो आई एम श्योर कि आपका अप्लायंस आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। उसके बाद 2 नंबर्स में हम चलते हैं कि हमको करना क्या है। सबसे पहला शुरुआत, उसके बाद में हमने कॉल सेंटर भी कर लिया। सेकंड चीज हम कॉल सेटिंग करते हैं। हमको सब अपने अपने सपनों हमारे अंदर में रहता है, लेकिन हम उसको बाहर उजागर नहीं करते, बताते नहीं लोगों को। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक चीज है, आपको अपना सपनों को सेट करना पड़ेगा। तो सपना आई थिंक 99.9% हम लोग का एक ही टाइप का रहता है, तो उसी में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहला तो आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि हम एक इंसान है और हमें बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन का हम लोग भूखे रहते हैं। एप्रिसिएशन हमको कोई करे, चाहे मैं कैसा भी काम करूँ, कोई आके बोले कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम किया आपने, तो आपको बहुत खुशी लगता है। और इसी प्रकार से मोदी केयर में हम करते हैं एवरी मंडे को, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट से हम उसको नवाजा जाते हैं, उनके नाम को हम वीडियोस बनाते हैं, राइट, और वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है एक इंटरनेट पे, ताकि आपको अच्छा लगता है अपना नाम जब आप देखते हैं अपने स्क्रीन पे। और सेकंड थिंग बीइंग ए ह्यूमन बीइंग्स, हम सब चाहते हैं कि किसी को हेल्प करें, जैसे कि कोई अनाथ आश्रम पे जाए, या किसी क्या बोलते हैं उसको, बुजुर्ग जहाँ पे रहते हैं वहां पे जाके कुछ हेल्प करे, या किसी गरीब लड़की का शादी कराए। ये सब हम चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम खुद का भी हेल्प करने की स्थिति पे नहीं है। एंड देन थर्ड नंबर है वर्क लाइफ बैलेंस। हम सब चाहते हैं अपना लाइफ को बैलेंस करें, लेकिन अभी देख सकते हैं कि कोरोना के कारण से बहुत सारे लोगों का वो लाइफ बैलेंस नहीं होता है। कोई बंदे को 8 आवर्स काम करना होता है, किसी को 12 आवर्स, तो उस चक्कर में अपना फैमिलीज के साथ में ज्यादा टाइम सामने दे सकते हैं। और ऑफकोर्स हम चाहते हैं एक बड़े से घर हो हमारे पास, विला तो अच्छा खासा घर हो हमारे पास, ताकि हम वहाँ पे रह सके। और फिर चाहते हैं अच्छा से गाड़ी हो। हमें पता है कि आप सभी का मन में एक गाड़ी तो हमेशा ख्वाहिश तो रहता ही है, ड्रीम कार है हमारे पास, तो आप भी चाहते हैं कि आपकी एक ड्रीम कार आपके पास क्या चाहिए, वो चीज होना चाहिए। एंड देन वर्ल्ड टूर्स, और हम जाते हैं फॉरेन ट्रिप करने के लिए। अक्सर मूवीज में तो देख लेते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं 2 कारणों के कारण। एक तो होता है पैसे, और दूसरा होता है सेफ्टी। शायद हम नॉट कंफर्टेबल उस कंट्री में जाने के लिए, तो वो चीज हमारे सपने आपको यहाँ पे चिपका देना चाहिए।
और क्वालिटी टाइम विद फैमिलीज, सब चाहते हैं ना अपने फैमिलीज के साथ दुख सुख का बात करें, साथ में बैठे कुछ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आज हम 2000, 4000 या 10,000 किलोमीटर फैमिलीज को छोड़ के आते हैं। अब ये मोमेंट जो है, जैसे कि मेरा बच्ची पहला स्टेप कब चला था वो मैंने देखा नहीं, तो ये मेरे बहुत दुख होता है कि मैंने वो चीज नहीं देख पाया। तो बाद में जाके मिल लेते हैं, लेकिन वो मोमेंट को आप फिर वापस नहीं पा सकते हो। एंड देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसे, बैंक बैलेंस सबको जरूरी है। कुछ इमरजेंसी क्राइसिस हो जाएगा तो कम से कम पैसे होगा तो आप सरवाइव कर पाएंगे लाइफ में, और हम चाहते हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो हम कैसे बढ़ाएं, वो एक सपना रहना चाहिए हमारा। और सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम फिनोमिनल बोलते हैं, ड्रीम्स, हम इस पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, वो है बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। हम सब माता पिता बिंग फैमिलीज चाहते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाए, अच्छे से स्कूल भेजे, लेकिन कर नहीं पाते हैं बिकॉज वहाँ का जो स्कूल का फीस है और मेरा जो मंथली इनकम है शायद उसका बहुत वो हाई है। तो ये सपनों को आपको रखना चाहिए और इसको सेटिंग करना चाहिए आपके माइंड पे, अपने दीवार पे चिपका दीजिएगा, ताकि मुझे इस सारे पिक्चर के मुताबिक मुझे काम करना है, मुझे ये चीज हासिल करना है। तो ये गोल सेटिंग आपको करना पड़ेगा। तो फिर पूछिए कि अपने आप से कि क्या आप अपने सपनों की तरह जिंदगी जी रहे हो। नहीं जी रहे हो तो प्लीज ये चीज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर आते हैं गोल सेटिंग हम कैसे करें। गोल तो देख लिया मैंने, पिक्चर भी लगा लिया, लेकिन इसके ऊपर काम कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखिए, आपको तीन प्रकार का आपको गोल रहता है। एक होता है शॉर्ट टर्म्स जैसे कि नेक्स्ट महीना या 2 महीने या 3 महीने में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जो चीज हमको चाहिए उसका चीज रखिए, जो छोटा अमाउंट का हो, चाहे 5,000 या 4,000 या 3,000 या 2,000। एक मोबाइल से रख लीजिएगा, या फिर आप सोचते हैं कि लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप का एक फोटो लगा के आप रख लीजिएगा। 2-3 महीने का एक गोल सेटिंग कर लीजिएगा। डेट कब चाहिए आपको, ये डिपेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अनटिल अनलेस अगर आप ड्रीम्स के ऊपर में डेट नहीं लिखते ना, तो हम बता दूं कि आपको किसी भी कीमत पे वो काम नहीं हो सकता है। ये साइकोलॉजी है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये जो इन्वायरमेंट, जो वर्ल्ड है, वो एक शक्ति है। जो आप डेट लिखते हो तो वो भगवान भी चाहता है आपको वो चीज को मिलाने के लिए। हो सकता है 1 या 2 महीना डिले हो या उससे पहले भी हो, लेकिन आपको डेट लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन उतना बड़ा सपना भी मत लिखिए जो चीज आपको हासिल करने के लिए कुछ समय ज्यादा लगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक ट्रेडमिल चाहिए, मैंने लिखा है अपने यहाँ पे, बस 2 या 3 महीने के अंदर मुझे ट्रेडमिल चाहिए, उसका डेट लिखा हूँ। एंड मिड टाइम जो 6 महीने या 1 साल के अंदर में आपको क्या चाहिए वो डेट आपको गोल पे डालिए। घर चाहिए, कार चाहिए, या आपको कहीं अच्छा सा खासा एक अच्छा सा कुछ खरीदना है, आप उसको नाम लिखिए और डेट लिखिए। लॉन्ग टर्म्स हम सबको घर चाहिए, तो घर का नाम लिखिए, फोटो चिपकाइए और उसका डेट लिखिए। 2025 में मुझे ये घर चाहिए। वो माइंड सेट करा लीजिए। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, हम 2 चीजों पे इंसान काम करते हैं। कॉन्शियस जो हम होश हवा पे जो देखते हैं, बात करते हैं। सबकॉन्शियस जो आप एक शक्ति है जो आपको इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे हम गाड़ी जब बाइक चलाते हैं तो हमको हमेशा फोकस नहीं करना पड़ता कि गियर चेंज करना, ब्रेक मारना है, या फिर कोई सिग्नल आ गया, वो बाय डिफॉल्ट हम काम करते हैं उसके ऊपर। या फिर आप गाड़ी चलाते हैं तो हमारा हाथ अपने आप गियर चेंज करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। वो चीज है हमारा सबकॉन्शियस, क्योंकि वो चीज जो किया था मैंने कॉन्शियस रहते हुए, वो प्रैक्टिस जाके मेरे सबकॉन्शियस में जाके डाउनलोड हो चुका है। तो सबकॉन्शियस के ऊपर में आपको भेजना है, आपको डाउनलोड देना है, पास करना है रिजल्ट। कॉन्शियस में लेके आपको सबकॉन्शियस में जब आप डालते हो तब ये चीज काम आपको होता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, जैसे कि स्पेसिफिक रहना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, और मेजरेबल रहना चाहिए कि हिसाब में आना चाहिए कि आप हेलीकॉप्टर ना लिख दे, और एक्शनेबल रहना चाहिए कि आप कैलकुलेट करो कि इतने दिनों के अंदर में मुझे ये ले सकता हूँ, और रियलिस्टिक रहना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए। एंड टाइम बॉम्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज के लिए भी काम करते हैं तो समय के ऊपर ज्यादा काम फोकस करिए। ये नहीं कि आज के लिए लिख दिया और 3 साल के बाद आपने उसको हासिल किया। इट्स नॉट कॉल योर ड्रीम। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं दोस्तों। तो 3rd नंबर स्टेप जो है प्रोस्पेक्टिंग। तो हमको प्रोस्पेक्ट क्या करना, न्यू ज्वाइनिंग को कहाँ से लेके आए। बिजनेस में हम ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन हम न्यू ज्वाइनिंग कहाँ से लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेड में येलो ने जो लिखा है फ्रेंड्स, जिसका एब्रिविएशन अगर आप देखेंगे F से अगर आप देखते हैं तो आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को आप बताएंगे प्लान के बारे में। आपके सारे दोस्त, आई एम श्योर आपके पास 100-150 दोस्त आप जानते हैं, पहचानते हैं उन्हें, आप उनको बताएंगे बिजनेस के बारे में। एंड देन सेकंड स्टेप है आपका रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके मम्मी के रिश्तेदार, आपके पापा के रिश्तेदार, अगर आप शादीशुदा है तो आपके वाइफ के रिश्तेदार। देयर आर सो मेनी रिश्तेदार, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड देन 3rd नंबर में जो है इंडस्ट्री है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम करने के जो जितने भी लोग रहते हैं उनके बारे में आप नाम लिखिए, बताइए, उनको
प्लान शो करिए, ठीक है। उसके बाद ई से आता है आपका कॉन्टैक्ट। फेसबुक में आप आज देख सकते हैं कि हमारा जो मोदी केयर है, ऑनलाइन बिजनेस पे ज्यादा फोकस अगर आप करते हैं तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसान होता है। उसी तरह से आपको कांटेक्ट करना है आपका फेसबुक फ्रेंड्स को, हाय हेलो और बिजनेस के बारे में जो भी है उनको बताना है। एंड देन आपको आता है फिर एन फॉर नाइबरहुड। आपके घर के आजू बाजू और जितने भी आस पड़ोस जितने भी लोग होते हैं उनको आप छोड़िए मत, और ये भी डिसाइड मत करिएगा कि वो नहीं करेगा, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। आपका काम है उनको बताना। यू नेवर नो उसका क्या डिसीजन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप आते हो डी पे, जिसके ऊपर हम डायरेक्टरी, आज तो हम डायरेक्टरी पर काम नहीं करते हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल पे भी आज के दौर में भी शायद 200 से 300 नंबर तो हमारे मोबाइल पे रहते हैं। आप उसको चेक करिए अल्फाबेटिकली कि किसको फोन करना है, और एक एक करके आप अगर आप प्लान शो करते हैं तो आई एम श्योर पर डे आप 10-15 बंदे को प्लान शो कर सकते हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट इज नॉट लीस्ट, वो है आपका स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी। दुनिया तो लोगों से, अजनबी से भर्ती पड़ा हुआ है। आप किसी से भी दोस्ती करिए, चाहे आप एरोप्लेन फ्लाइट पे हो या फिर एयरपोर्ट पे हो या रेलवे स्टेशन या ऑफिस, कहीं भी हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन जगह देख के आपको ये बात को करना है। मच्छी बाजार पे शुरू मत करिएगा, अच्छा जगह में जहाँ पे आपको टाइम थोड़ा एक साथ बिताने वाले हो, जैसे वेटिंग रूम में बैठे हैं, मेडिकल कहीं बैठे हैं, जहाँ पे आधा घंटे 1 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा है, ऐसे जगह पे आपको अपने बारे में स्टार्ट करना चाहिए, अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। आपको हेजिटेट, आपको शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कोई क्राइम नहीं करे बल्कि उसको एक हेल्प कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस चीज पे काम करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। और फिर थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट को हम कैसे फॉर्मेटली करें, उसके ऊपर काम कैसे करें। आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा या फिर आपको एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। सबसे पहला आपको नाम लिखना है कि किसको आपने प्लान बताया है, उनके फोन नंबर्स, उसका प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं, उनका लिखना है। फर्स्ट मीटिंग आपने कब उनको प्लान शो किया है, सेकंड मीटिंग आपने कब उसको प्लान शो किया है, थर्ड मीटिंग कब आपने प्लान शो किया, फोर्थ मीटिंग कब आपने प्लान शो किया है। इसका ये मतलब है कि आपको निरंतर 4 बार तो आपको उनको फॉलोअप्स करना है। एक बार बता दिया, प्लान शो कर दिया, जोश में पूरा आपने 100% उनको समझा दिया, नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स आपने उसको फॉलोअप नहीं किया ना, तो बंदा फिर आपका बिजनेस में नहीं आएगा। और इतना भी आप याद रखिए कि हर बंदा को हाँ नहीं कर पाएंगे, किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को समय देने के लिए टाइम नहीं लगता है, और कोई सब समझता है कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोअप्स करना आपका काम है, और हर एक फॉलोअप्स के बाद में आपको उसको कमेंट लिखना है, और लास्ट में लिखना है रिमार्क। 4 फॉलोअप्स के बाद में अगर वो ना है या हाँ है, जो भी है आपको रिमार्क में करके वो काम खत्म, चैप्टर से क्लोज। तो इस तरह से आपको ये चार्ट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर में आता है सेल्फ यूज। अगर आप मोदी केयर है तो सबसे पहला तो आपको सब कुछ पता रहना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। अनटिल अनलेस अगर आप किसी चीज को यूज करते हैं और किसी को बताते हैं तो फीलिंग्स नहीं झलकता है, क्योंकि यूज एंड टच, फील एंड टच जो बोलते हैं हम उसको, आप करने के बाद ही उसको किसी और को बता सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना है। अगर आपने कोलगेट या फिर अगर आपने फ्रेश मूवमेंट या बॉडी सॉफ्ट वॉश यूज किए हैं तो उसके बारे में अगर आप किसी को बताते हैं तो आप बेहतरीन तरीका से बता पाएंगे, क्योंकि उसको आपने यूज किया है। एंड देन सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वो है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि हर एक इंसान को अलग अलग किस्म का आपको फीडबैक मिलेगा। हर कोई आपको पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट नहीं देगा। कोई बोलेगा महंगाई है, कोई बोलेगा गलता है, कोई बोलेगा अच्छा नहीं है। तो हजारों किस्म के लोग, हजारों टाइप के आपको फीडबैक देगा, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत संभाल के काम करना है, बिकॉज यू आर ए लीडर। यू शुड नो कि ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कैसे करें। तो उसको तरीका से आपको बात करना है, उसको पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट करना है, और ये जब आप कर पाएंगे तो आई एम श्योर कि आप अपने और उसके पैसे सेव करने में आप हेल्प करेंगे। तो हर बंदा कोई कुछ बोल देता है कि बहुत महंगा है, आप भड़क मत जाना या गुस्से मत कर लेना, उसको लाइट ले लेना, उसके बात को सुनना, जो बोलते हैं उसको पहले पूरा सुन लेना, उसके बाद धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करना। आई एम श्योर कि उनको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड 4th नंबर अगेन सेल्फ यूज में हम करें तो क्या करें। आप जानते हैं हम अक्सर, अगर मैं बैचलर हूँ या फैमिलीज में हूँ तो मैं क्या यूज करूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेश मूवमेंट हमको चाहिए होता है, और चाय पीना पड़ता है हमको, चाय पत्ती लेते हैं, और कुछ इस लोगों का फेस वॉश है, टोनर है, आपको 1 ड्रॉप खाना वाना खाते हैं, पेट तो धोना ही पड़ेगा, एसेंशियल थोड़ा परफ्यूम लगा लेते हैं। और अगर आप किचन में जाते हैं तो हमको कच्ची घनी तेल, पूरी उरी या सब्जी, हम कुछ भी बनाने के लिए हमको चाहिए होता है। और फेस पे थोड़ा सा मेकअप वुकअप या पिंपल्स या फिर दाग धब्बे को निकालना है, और थोड़ा एनर्जी बूस्ट करने के लिए आपको मल्टीविटामिन वगैरह मिल जाएगा वेलनेस में। और स्टेरी क्लीन, जैसे कि कोविड का टाइम है, घर को साफ करना है, पोछा वोछा लगाने के लिए बहुत अच्छा काम
करता है। सैलून का जो शैम्पू है, जैसे कि आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या फिर आपके बाल झड़ते हैं उसके प्रॉब्लम, और टॉयलेट जिसको हम WC बोलते हैं या इंडियन जो भी टाइप का इंडियन या वेस्टर्न जो भी है उसको साफ करने के लिए आपको WC में आपको बियॉन्ड ब्लू मिलते हैं। और फिर आप बात करते हैं बच्चे हैं घर पे, तो उनको भी थोड़ा हॉर्लिक्स के जगह पे आप इसको दे सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जिसको वेलनेस प्रोडक्ट में बेस्ट माना जाता है। और नहाने के लिए तो हमको सॉफ्ट वॉश जरूरी है। तो ये सामान अगर आप लेते हैं, बास्केट में लेते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आपको 3000 तक में आपको ये चीज आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा जॉइंट फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं या फिर मतलब थोड़ा पापा मम्मी साथ में है, तो आप उसको फिर शॉपिंग करते हो तो उसमें थोड़ा ऐड करते हो, थोड़ा लेडीज के लिए जैसे कि सैनिटरी नैपकिन हो गया, या फिर आपको थोड़ा सा टेल्कम पाउडर्स हो गया, फिर आपने ऑल प्रोटीन पाउडर जैसे कि आपको मोटापा कम करना है या फिर आपको मोटापा ज्यादा करना है, अपने वेलनेस का प्रोटीन पाउडर लिया। फिर सैलून्स के लिए आपको डैंड्रफ या एंटी डैंड्रफ टाइप का कुछ भी शैम्पू खरीदे तो अपने बास्केट को करते हैं तो 5000 रुपये होता है, जिसके आपको लॉयल्टी के हकदार भी बन जाते हैं। एंड देन 5th नंबर में आपको शेयरिंग करना पड़ेगा। तो शेयरिंग कैसे करें? तो सबसे पहला तो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आपको किसी के घर जाने से पहले फोन कर लेना चाहिए। 3 वे हमारे पास आजकल के जमाने में, तो हम फोन करते हैं और जैसे आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया तो आप उसको जाएंगे घर पे, 1-on-1 करेंगे, होम मीटिंग करेंगे। अगर उनको परिवर्तन या सेमिनार में उनको इनवाइट करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर हो सकता है तो प्लीज आप खुद ही उनको परिवर्तन या सेमिनार उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज उनको हमारे मीटिंग्स पे आप इनवाइट करिएगा। और फॉलोअप्स करना है विदिन 48 आवर्स में। प्लान शो करके आया, आपने डेमो दे के आया है। 24 आवर्स मेरे लिए है, मैं 48 आवर्स आपको बुफर के लिए बोलता हूँ, लेकिन 24 आवर्स के अंदर में उनको फोन करके उनका रिव्यू जरूर ले लीजिएगा। एंड देन 6th नंबर में स्पॉन्सरिंग क्या करते हैं? आप किसी को भी अगर आप फॉलोअप्स कर दिया, प्लान शो कर दिया, उनको बास्केट भी खरीद दिया, तो ज्वाइनिंग कराना है तो सबसे पहले आपको KYC करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और उसके बाद आप NEFT करते हैं, बैंक ट्रांसफर जो भी अमाउंट आता है उनका बोनस चेक आता है, उनका बैंक में जाने के लिए आपको हेल्प करना है। KYC बराबर होना है, NEFT बराबर होना है, बैंक डिटेल्स बराबर रहना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में आप उनको जरूर बताइएगा। फर्स्ट ऑर्डर ले लीजिएगा उनसे 50-100 जो भी PV है। उसके बाद इनवाइट करिए उनको शुरुआत मीटिंग के लिए या फिर किसी परिवर्तन ट्रेनिंग के लिए आप करा सकते हैं। और सपोर्ट करिए उनको, तो एंड लीड करिए उनको। सपोर्ट करना है आपको, ज्वाइनिंग देके छोड़ नहीं देना है उन्हें। उनको इस महफिल में उनको कुछ भी पता नहीं होता। वो जैसे किड्स, जैसे कि नर्सरी LKG में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो भी हमारे लिए एक बच्चे की तरह है। और आपका ये कर्तव्य है कि आप उनको सपोर्ट करें, लीड करें, जब तक वो डायरेक्टर या क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं बन जाते हैं। ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका जो सिस्टमेटिक ABCD, अगर आपने बैलेंस स्ट्रक्चर किया, आपने 4 लेग्स को बराबर किया है, चारों लेग्स में सोच लीजिएगा अगर आपने 50-50-50 PV करके चलते हैं तो आपका टीम बोनस जो भी आता है अच्छा खासा आता है और आपका इनकम अच्छा आ जाएगा। अगर आपका 4 लेग्स में सिर्फ 1 लेग अगर आपने काम किया, 1 लेग में अगर सोच लीजिए आपको 10 बंदे लॉयल्टी करने वाले हैं, 3 लेग्स में आपको कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है, तो यू आर नॉट गुड इन स्ट्रक्चर। आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं है और आगे चल के बहुत मुसीबत होने वाला है आपको। तो स्ट्रक्चर आपको Day 1 से स्टार्ट करिएगा और फिलहाल तो आपको सिर्फ ABCD 4 स्ट्रक्चर पे काम करना है। इससे ज्यादा लेग मत खुलिएगा और चारों लेग में से एक को डायरेक्टर बनाइएगा, एक को लीडर्स बनाइएगा। ये काम आपको शुरुआत 7% से स्टार्ट करके आना है। ज्यादा मत फोकस करिए, चारों ABCD नाम लेके राउंड मारिए और वहां से 50-50 PV एवरी मंथ उसके लिए टारगेट रखिए। और ये कैलकुलेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में हम जब बात करेंगे 8 नंबर, स्टेप नंबर 8, BA रोल मॉडल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल मॉडल्स आप उसको देख सकते हैं। मोदी केयर में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष करके आज वो मुकाम पे पहुंचे हैं। आप उनके YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं या उसको आप एक एग्जांपल बना सकते हैं। आप उसी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो आपका 100% सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा। आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं मोदी केयर का लेना पड़ेगा आपको, तब आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। शो द प्लान आपको डेली करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 3 से 4 बंदे हर दिन आपको प्लान शो करना पड़ेगा। अगर सक्सेस चाहिए आपको तो शो द प्लान, शो द डेमो, ये इसके छोड़ के आपको यहाँ पे बीच में कुछ अलग मंत्र कुछ नहीं है। एंड 3rd नंबर आपके पास में डेमो किट रहना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो डेमो प्लीज करिए और उनको बताइए प्रोडक्ट का डिस्टेंस डिफरेंस के बारे में बताइए कि मार्केट को और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है, बहुत जरूरी है। एंड देन 4th नंबर इज डेली होम मीटिंग्स। ये तो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है कोविड के कारण, लेकिन आप फोन पे भी कर सकते हैं या जूम पे कर सकते हैं।
और कोच होना चाहिए आपका एक कोई भी, और एक मेंटोर आप किसी को बना लीजिएगा। और आप किसी के घर पे जाते हैं या मीटिंग में बैठते हैं तो आपका एटलीस्ट पावर ड्रेसिंग रहना चाहिए। जूम सेशन में अगर वीडियो ऑन करते हैं तो गंजी या बनियान या लुंगी लगा के मत बैठिएगा। और किसी के घर पे अगर आप प्लान शो करने जाते हैं तो हाफ पैंट पहन के या चप्पल पहन के मत जाइएगा, बिकॉज यू आर डीलिंग with one of the best industry in India। ये जो ट्रेनिंग ओवर इतना बड़ा हाईफाई कंपनीज है, आप अपने उतना भी हाईफाई नहीं, कोट टाई में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आप एक फॉर्मल पहनिएगा, साफ सुथरा कपड़ा और साफ सुथरे से ग्रूमिंग करके, शेविंग वेविंग जो भी नहा धो के आराम से चले जाइएगा। और टीचेबल होना चाहिए, आपको हमेशा सीखने का इच्छा रहना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि हम कोई भी मास्टर कभी नहीं बन पाते हैं, या एंड ऑफ द लाइफ तक हम सीख सकते हैं चीजों को। तो हम आज, मैं अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ तो मैं बहुत बड़ा मालिक नहीं बन गया हूँ, बल्कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। एंड देन पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल मतलब क्या, अगर आप उसको 7:30 का टाइम देते हैं तो आप 7:25 को या 20 को पहुंच जाइएगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, गुदली बाजार तक घूमते घूमते माछी उछी 2 केजी लेके उनके घर पे प्लान शो करने मत जाइएगा। एंड डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। इस पे कोई फायदा नहीं है आंसर, इस पे आपको कोई फायदा नहीं मिलता। आप किसी को भी किसी के बारे में, आपको किसी प्रकार का आपको नेगेटिव के बारे में बात नहीं करना है। आप जो भी बोलते हो अच्छा बोलो, क्योंकि नेगेटिव किसी के बारे में कमेंट करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो बात करते हैं ना, वो लास्ट में जाके फिर आपको वापस भी आएगा। कहीं से नहीं तक कहीं से वो बंदा उसको सुनेगा और उसका जो आउटकम है बहुत गंदा रहेगा। तो मत करिएगा नेगेटिव। एंड फॉलो द सिस्टम। सिस्टम में रह के इसको काम करना है, अपना यहाँ पे दिमाग नहीं लगाने का। तो सिस्टम जो कंपनी बोलता है उसी प्रकार का हमें इसको फॉलो करके काम करना है, ठीक है। एंड देन 9 नंबर्स में देखिए, पर्सनल प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। हम इस पे कोई भी मतलब डिग्री, बिना डिग्री के सब लोग काम करते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम से आएंगे, ट्रेनिंग से आएंगे ना, तो आप भी खुद को अच्छी तरह से ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेट बना सकते हो। तो पावर प्रेजेंटर होना पड़ेगा, आप बन जाते हो धीरे धीरे। मीटिंग सेमिनार जितने ज्वाइन करते हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। पावर प्रेजेंटर किसी को बताते हैं ये पीपीटीज ओपन करके, तो आप इसको अगर बताते हैं तो एक इफेक्टिवली बताना पड़ेगा। और मास्टर होना पड़ेगा SMP, ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है। और मास्टर आपको कम से कम 4 से 5 आपका प्रोडक्ट के ऊपर में आपको डेमो का मास्टर होना चाहिए। फ्लेक्सुअल में आपको मास्टर होना चाहिए, डिटॉक्स में, या फिर सॉफ्ट वॉश, स्टेरिक्लीन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप रखिए जिसके आप मास्टर हो, कभी भी आप प्रिपेयर हो, कभी भी मतलब आप डेमो कर पाते हो। एंड हाउ टू एडिफाई अपलाइंस, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा कि आप अपने अपलाइंस को तारीफ कैसे करें, उसको एप्रिशिएशन कैसे करें लोगों के पास, लोगों के सामने में। ये चीज आपको बहुत जरूरी है। बेइज्जती का मत करिएगा। अगर वो आपसे कम पढ़ा लिखा है या वो अंगूठा छाप है, किसान है, खेती है, आप उसके डाउन है, इसका ये मतलब नहीं आप उसको बेइज्जती करोगे। आप डॉक्टर या टीचर या प्रोफेशनल हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज योर अपलाइन, तो अपलाइन की तरह उसको इज्जत करना सीखना, आपको जानना चाहिए। एंड हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, आपके बारे में आपको बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है एक्चुअली। कैमरा को ऑन करिए, घर पे बैठिए और अपने बारे में आपको बताना है। 10-15 टेक लीजिएगा घर पे, ऐसे बैठ के बस ऑन करिएगा अपने बारे में। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजू ठाकुरी और मैं बैंगलोर से हूँ। ऐसे टाइप के कुछ छोटे वीडियोस बना के आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं या खुद देख सकते हैं। आपका इसमें लैंग्वेज का जो पावर होता है वो बढ़ते जाएगा। एंड टाइम मैनेजमेंट आपको जानना चाहिए, सुबह से रात तक मुझे क्या क्या करना चाहिए और कितना टाइम पे मुझे लोगों के साथ में बात करना चाहिए। ये चीज आपको अच्छा खासा मालूम होना चाहिए। किसी को अगर आप बोलते हैं कि मैं अभी आपको कॉल करूंगा या मुझे कॉल आ रहा है, तो आप वो आदमी खराब नहीं मानेगा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करने का आना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा अपलाइन है, उससे बात करूंगा, उसको मैं फोन कर दूंगा या उसको बोलूंगा तो खराब मान जाएगा। नहीं, आपको पहला देखना है आपका टाइम मैनेजमेंट। एंड देन टूल, आपको ट्रेनिंग टूल एंड लिटरेचर आपके पास में अगर बुक्स है नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप यूट्यूब फेसबुक से अक्सर ये सिर्फ ट्रेनिंग चीजों को आप ले सकते हैं। और ट्रेनिंग वीडियो तो भसमार है हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप कभी भी जाके लॉग इन करके आप देख सकते हैं उसको। और अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, हमारे जो नेशनल वाइड में 6:30 का जो कॉल्स रहता है, अगर आपको समय मिलते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन किया कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई लेवल का एक ट्रेनिंग मोटिवेट होता है। और प्लस हमारा टीम ईगल में भी बहुत अच्छे ट्रेनिंग होता है। तो हर ट्रेनिंग को प्लीज आप मिस मत करिएगा। अगर आपके पास समय होता है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड जैसे कि आज का जो टॉपिक है, शुरुआत है हमारा, रफ्तार है, प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग, एडवांस वर्कशॉप कराते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग को आपको करना जरूरी है ताकि आप अपने आप को सेल्फ डेवलप कर पाएंगे, सीख सकेंगे। एंड देन 10 नंबर्स में आता है डुप्लीकेशंस। यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है। मेरे अपलाइन संजय जी ने जो काम किया है मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ, और आपको भी अपने अपलाइंस को फॉलो करना है।
जैसे वो काम करते हैं, जैसे बिजनेस प्लान को कराते हैं, उसी चीजों के बारे में आपको अपने दोस्तों को, अपने डाउनलाइन्स को बताना है। लीड बाय एग्जांपल है, बहुत सारे आप किसी को एग्जांपल देके बात कर सकते हैं। होम मीटिंग कराइए, अगर आपका पॉसिबल है तो होम मीटिंग जाके कराइए। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग करना अपनी टीम के साथ में, 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे बैठिए ट्रेनिंग करिए। और प्रोडक्ट डेमो करना जानना है आपको, ज्यादा से ज्यादा डेमो करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाद में रफ्तार। अगर आपने शुरुआत करते हैं सब कुछ के 10 कदम को अगर आप फॉलो करते हैं, तब आपका बिजनेस पकड़ता है रफ्तार और आप होते हो तैयारी जीत की, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आप इस बिजनेस को लेके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, आपका मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए प्रोसेस के थ्रू से आप उसको करिएगा। अपना प्रोसेस उस पर मत डालिएगा। 10 प्रोसेस जो बताया है शुरुआत में, उसको आपको उसी प्रकार से आपको इस बिजनेस को शुरुआत करना है। तो विद दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और ऐसे ही ट्रेनिंग में जुड़े रहिएगा। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो हम जरूर उसको भी लेंगे। मैं अनम्यूट ऑल जरूर करूंगा, लेकिन एक एक करके आपको म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, ठीक है जी। क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? धीरज जी क्या? सर गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। सर, आज का जो सेक्शन था तो बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे आप एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करके जैसे बताया हम लोगों को, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत ही आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सर, आज का ये अच्छा एक सेक्शन देने के लिए हम लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का कुछ सवाल, कुछ जानना है आप लोगों को तो प्लीज अनम्यूट करिए। ओके, तो लगता है आप सब क्लियर है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बिजनेस को इसी तरह से करिएगा। और आज जैसे कि 25 तारीख था हमारा लॉयल्टी क्लोजिंग का डे, तो आई एम श्योर आप सभी ने क्लोजिंग जरूर किया होगा। और अभी हमारे हाथ में और 5 दिन है, तो 5 दिन में जो भी आपका जो भी अचीवमेंट है उसको जरूर उस पर काम करिएगा। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेम प्रसाद गिरी जी को कि आपने आज गोल्ड क्वालिफाइड किया है। और साथों साथ में आपने कंपनी का जो कैपिंग देता था 40,000 पीजीबीबी, उसको आपने क्वालिफाइड अचीव करके आपने 4,000 इंसेंटिव भी मिला है। तो मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट मंथ आपका जो भी इनकम होगा 10 से कम ना हो। तो इसी तरह से अभी भी समय है, अभी भी सुमन जी, गोमा जी, आप लोग के लिए अभी भी समय है। अगर आप कोशिश करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको जरूर हासिल होगा। और नहीं भी होता है दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट मंथ को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ को ये कैपिंग सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में अभी तक हमको कोई खबर नहीं है। लेकिन इस महीने में है, उसको हमको छोड़ना तो नहीं चाहिए। एटलीस्ट अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर आपको वो मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो ऐसे कॉल में जुड़े रहिएगा। कल फिर हम मिलते हैं एक नया सेशन के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है दिल से मोदी केयर को करिएगा। एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।